Hello everyone and welcome to the current legal affairs of this week, which is August 1 to August 7. Now these are the batches that we have. We had more than 50 selections in CLAT 2022. Please, if you have any inquiry about any of the batches, call at this number and we will be happy to guide you. Now coming to our first case for the week, Reliance Industries Limited versus SEBI, which is Securities and Exchange Board of India. Now, Supreme Court has held something which can be of importance in your CLAT exams. So, the Supreme Court has said that initiation of criminal action in commercial transactions should take place with a lot of circumspection, and the courts ought to act as gatekeepers for the same. Initiating frivolous criminal actions against large corporations would give rise to adverse economic consequences for the country in the long run. Therefore, the regulator must be cautious in initiating such an action and carefully weigh each factor. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि कभी भी अगर कोई क्रिमिनल एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी इंसान क्रिमिनल एक्शन ले रहा है या केस फाइल कर रहा है अगेंस्ट ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो कोर्ट्स को ध्यान देना चाहिए है कि ये फ्रिवलस एक्शंस ना हो, क्योंकि अगर फ्रिवलस रीज़न से बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बार बार कोर्ट में लाया जाएगा तो इससे इकोनॉमी पे, जो इंडिया की इकोनॉमी है उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई. So that is all the court has said in this case. Now comes the second case, which is Dr. Mandati Thirupathu Reddy. I'm sorry, थोड़ा सा गलत हो सकता है pronunciation. Versus Election Commission of India. Now a petition was filed by Dr. Reddy. He wanted कि उनका जो nomination है for the post of Vice President of India, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग की वो पोस्ट खाली थी, उस पर इलेक्शंस होने थे, क्योंकि टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया वाइस प्रेसिडेंट आता है. सो ही वांटेड कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लें फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. कोर्ट ने मना कर दिया बिकॉज दैट्स नॉट द मेथड जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेथड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है किसी को. दिस इज समथिंग जो एमपीज विद इन द पार्लियामेंट जिस पे वर्क होता है, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच लाइक अ सुप्रीम कोर्ट कैन से कि इस इंसान का आप नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लें एक्सेट्रा. सो द कोर्ट सेड the nature of relief prayed for in the present petition filed under Article 32 in our view cannot be entertained and granted. The petition is completely misconceived and therefore rejected. क्योंकि वो ये सही petition ही नहीं थी, ये कभी फाइल ही नहीं होनी चाहिए थी. Now we will take this case to revise the few articles which are important for the Vice President of India. So under Article 63 of the Constitution, there is written that there should be a Vice President of India. Now Article 64 says that the Vice President to be is actually the ex officio chairman of the Council of States. तो जैसे हम लोग का स्पीकर होता है लोकसभा में, प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को, वैसे ही जो राज्यसभा है उस पर कौन प्रिसाइड करता है? उस पर प्रिसाइड करते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, जो पोस्ट, जो इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होता है उस टाइम, वो ही राज्यसभा को प्रिसाइड करता है. जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा में वैसे ही ये राज्यसभा में होते हैं. और जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में बैठते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं चेयरमैन. स्पीकर नहीं कहा जाता, चेयरमैन कहा जाता है. ठीक है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा. आर्टिकल 66 क्या कहता है? बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की. सो लेट्स सी कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का. क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से नॉमिनेशन आता है? तो 66 clause 1 says that the vice president shall be elected by the members of an electoral college, right, consisting of the members of both houses of parliament, all the MPs, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and voting at such election shall be by secret ballot. इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब हुआ? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हुआ जो लोग वोट करते हैं, जो इलेक्ट्रेट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए. हम लोग तो वोट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है.
सेम इज विद द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि कौन कौन वोटिंग करेगा इन इस वाले इलेक्शंस में, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों। जो प्रेसिडेंट है उसमें स्टेट के जो एमएलएज हैं वो भी आते हैं ऑफ ओनली द अपर हाउस, in accordance with the system of proportional representation. Now, what is proportional representation? Proportional representation means कि हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि ओनली बिकॉज यूपी हैज़ मोर नंबर ऑफ एमएलएज तो यूपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एंड अ स्टेट लाइक त्रिपुरा वेयर वी हैव लेस नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ के वोट्स कम मायने रखें। ऐसा नहीं हो, इसके लिए कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote. Single transferable vote क्या होता है? Let's say there are 3 candidates and there are let's say 100 votes. ठीक है, टोटल 100 votes हैं, जितने MLAs और MPs हैं सब मिला के 100, सॉरी नॉट MLAs और MPs, जो MPs हैं टोटल राज्यसभा और लोकसभा के वो सब मिला के 100 है। तो अब जो भरा जाता है, तो लाइक वी गिव वोट्स, उस तरह से वोट नहीं होता है। यहाँ पे किस तरह से होता है, 3 मेंबर्स हैं तो 1, 2 एंड 3 तीनों का नाम लिखा होगा। यू गिव यू एज एन द एमपी सेज कि भाई हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है कैंडिडेट नंबर 3, दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। माई सेकेंड प्रेफरेंस इज कैंडिडेट नंबर my first preference is candidate number 2, my second preference is candidate number 3, ठीक, and then my third preference is candidate number 1। अब ऐसे करके सब 100 लोगों ने वोट किया। हुआ क्या कि आउट ऑफ 100 60 वोट्स इनको मिले, फर्स्ट को जो कैंडिडेट था, जो थर्ड थे उनको मिले लेट्स से 30 एंड देन इनको सिर्फ 10 मिले, ठीक है। तो अब जिस इंसान ने फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड वाले को डाला था, द सेकंड कैंडिडेट, उनका तो ये वोट वेस्ट ही हो गया क्योंकि ही इज आउट ऑफ द रेस। अब क्या होगा कि जितने भी लोगों ने सेकंड वाले को वोट किया था उन सब का जो बैलेट है वो फिर से देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि उनका सेकंड प्रेफरेंस किसको था। सो लेट्स से कि सबका सेकंड प्रेफरेंस जो है वो थर्ड वाले कैंडिडेट को था। लेट्स जस्ट अज्यूम कि ऑल दीज 10 पीपल हैड द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर सेकंड कैंडिडेट, बट जो सेकंड प्रेफरेंस था वो थर्ड कैंडिडेट के लिए था। तो अब ये 10 वोट्स इनको मिल गए, राइट। तो नाउ ही हैज़ 40 वोट्स, ठीक है। अगर कोई और भी है, लेट्स से इससे सिर्फ 5 ही वोट्स इधर जा रहे थे, बाकी 5 इधर जा रहे थे, तो इनके 65 हो जाएंगे। एनी हाउ द फर्स्ट वन इज गोइंग टू विन, रीजन बीइंग कि योर हाफ पास्ट 1 तो आगे देखा ही नहीं जाता, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस इज हाउ इट्स डन, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट ट्रांसफर होता है एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट वी ऑल नो, हम लोग का भी जो वोटिंग हम लोग करते हैं वो सीक्रेट बैलेट होती है, विच इज दैट नोबडी एल्स नोज दैट व्हाट यू आर वोटिंग फॉर, whom you are voting for rather। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 years का होगा। देन आर्टिकल 69 क्या कहता है कि एवरी वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी जब हम लोग के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, नाउ ही विल हैव टू टेक ओथ। तो वो ओथ दिलाएगा कौन? तो एज पर आर्टिकल 69 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। So that's all about it. Now we come on to the third case for the week, which is Mandar Deepak Pawar versus State of Maharashtra. अब ये किस चीज़ पे है? So many a times we see कि ऐसे बहुत सारे cases आते हैं जहाँ पे there has been a promise of marriage, right, by a boy to the girl. Now because the agreement sort of is, or rather let's say understanding is that they will get married, they enter into sexual intercourse before marriage, right, thinking that okay, this will eventually lead to marriage. What if that marriage does not actually happen, right? So there have been like innumerable cases where the girl files a case saying that this was actually rape because my consent was only that because the two are going to get married, that it was like okay,
there can be a sexual intercourse. But because now it's no marriage, then that means that the other person had actually taken the consent for sexual intercourse under false pretext. झूठा बात करके कि शादी होगी, पीपल एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसीलिए रेप का केस कर देते हैं बाद में जो लड़कियां होती हैं ऑन द देयर मेल पार्टनर्स व्हेन द मैरिज डज नॉट मटेरियलाइज। इस पे कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट वंस, सो लेट्स सी व्हाट द कोर्ट हैज सेड। The court said, ये सुप्रीम कोर्ट का ही है, the consent of a woman with respect to section 375 must involve an active and reasoned deliberation towards the proposed act to establish whether the consent was vitiated by misconception of fact, यानी कि क्या ये जो consent है वो misconception of facts के लिए ली गई है, यानी कि गलत facts बता के। गलत fact कौन सा है? That we will get married। अगर ये बोला है और फिर marry नहीं किया, then that is misconception of fact arising out of a promise to marry, two propositions must be established। तो अगर कोई भी ये allege कर रहा है then there has been a rape, why? Because the consent was under another fact, किसी और चीज़ की वजह से था और वो चीज़ ही नहीं हुई। इसके लिए दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट, that the promise of marriage must have been a false promise। पहली बात, वो promise false होना चाहिए। अगर इस तरह से है कि जब promise किया गया था by the boy, he actually meant that he will get married to that girl, ठीक है, उस टाइम पे वो promise false नहीं था। It did not materialize, that's another thing, but वो promise false नहीं था। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि the promise of marriage was actually false। तो उसी टाइम पे he never intended to get married, given in bad faith with no intention of being adhered to at the time it was given, ठीक है, मतलब शुरू से ही वो promise false था। सेकेंड, ये प्रूव करना होगा द फॉल्स प्रॉमिस इटसेल्फ मस्ट बी ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस, यानी कि इमीडिएट रेलेवेंस होना चाहिए। इसी वजह से ही वो सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए एंड नो अदर रीजन, ठीक है। डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए है बिटवीन द वुमेन्स डिसीजन टू एंगेज इन द सेक्सुअल एक्ट, राइट। नाउ कम्स सत्यजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें क्या हुआ था, ये जो स्टेट ऑफ झारखंड है वो 2016 में एक नोटिफिकेशन लाया था जहाँ पे ये कहा गया था कि 100% रिजर्वेशन मिलेगा लोकल रेजिडेंट्स को इन द डिस्ट्रिक्ट, जो पर्टिकुलर 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में कार्डर क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट के लिए सिर्फ वही लोगों को ये पोस्ट दी जाएगी जो कि झारखंड में या उन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए होगा ये, लोकल रेजिडेंट्स के लिए। ये ऑब्वियसली चैलेंज किया गया बिकॉज आप 100% रिजर्वेशन दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर एलिमिनेटिंग एवरीबडी एल्स। सो द कोर्ट हैज क्वॉश्ड इट and the court said that 100% reservation provided for the local residents of the concerned scheduled district or areas only would be violative of Article 16 Clause 2 of the Constitution of India, क्योंकि you cannot make a distinction only because of the residents, right? And affecting rights of other candidates or citizens of non-scheduled areas, districts guaranteed under Part 3 of the Constitution of India. So you cannot do this. आप एकदम उन लोगों को discriminate नहीं कर सकते हो। The court had held that as per Article 16 Clause 3 read with Article 35, local domicile reservation can be provided only through a law enacted by the Parliament. इसके लिए पार्लियामेंट को इनैक्ट करना पड़ेगा लॉ, एंड स्टेट्स इनैक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज अनदर रीज़न कि ये जो 100% रिजर्वेशन है इसको कहा गया कि भाई इट हैज़ टू बी कॉस्ट। नाउ देयर वाज रिसेंटली अ केस ऑफ छेब्रुलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी का नहीं हुआ है, ये थोड़ा टाइम हो गया, बट उसमें भी 100% रिजर्वेशन की बात थी, which is why we'll just revise. The court had struck down 100% reservation for the scheduled tribe members in teaching posts in scheduled areas in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में जो scheduled areas हैं उनके लिए कुछ टीचिंग पोस्ट निकली थी वहाँ पे, और ये था कि 100% रिजर्व की गई थी वो पोस्ट सिर्फ scheduled ट्राइब के मेंबर्स के लिए। तो ये चैलेंज हुआ और उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। कोर्ट ने क्या बोला कि जो रिजर्वेशन है
वो इसलिए है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को जिनके साथ हमेशा से जुल्म होता आया है, हु हैव ऑलवेज बीन ऑन द डाउन साइड ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम लोग 100% रिजर्वेशन दे देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा, और हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बाकी जनरल क्लास को, हमें इन लोग को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप 100% रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप दूसरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो और प्रोटेक्टिव मेथड के बहुत बाहर जा रहे हो। The citizens have equal rights, and the total exclusion of others by creating an opportunity for one class is not contemplated by the founding fathers of the Constitution of India. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाउंडिंग फादर्स थे उनका ये मकसद नहीं था रिजर्वेशन देने का कि बाकी सबको हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें। सिर्फ ये था कि वो लोग जिनके साथ हमेशा से एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता आया है, हम उनको प्रोटेक्ट करें। So that's all for this week. Thank you so much, and see you next week. Bye bye.